لبنان میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری معاشی اور سیاسی بحران اور احتجاجی مظاہروں کے درمیان بالآخر نامزد وزیر اعظم حسن دیاب نے نئی حکومت تشکیل دے دی ہے۔ 20 وزراء پر مشتمل نئی کابینہ میں ملک کی سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ ماہرین شامل ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لبنان میں احتجاجی مظاہروں کے درمیان نامزد وزیر اعظم حسن دیاب نے نئی حکومت کی تشکیل کر دی ہے۔ 20 وزراء پر مشتمل نئی کابینہ میں ملک کی سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ ماہرین شامل کیے گئے ہیں۔ اس کابینہ کا سب سے پہلا کام ملک کو درپیش غیر معمولی معاشی بحران کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ لبنان میں نئی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے منگل کو اس وقت اتفاق رائے ہوا تھا جب ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں نے 20 ماہرین پر مشتمل کابینہ کی حمایت کر دی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے نئی کابینہ کی حمایت میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حسن دیاب کی حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کی مکمل حمایت کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے لبنان کی خود مختاری، استحکام اور سیاسی آزادی کی غیر مشروط حمایت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم حسن دیاب نے کہا کہ ان کی حکومت ملک میں آزاد عدلیہ، غبن شدہ فنڈز کی بازیابی اور غیر قانونی مراعات حاصل کرنے والوں کے خلاف عوامی مطالبے پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ أحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان. هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من 3 أشهر من الغضب، وستعمل لترجمة مطالبهم باستقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة من ظلم الضرائب۔ صدر مشل عون نے دسمبر میں امریکی یونیورسٹی آف بیروت کے پروفیسر حسن دیاب کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ حسن دیاب کو حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لبنان اس وقت غیر ملکی قرضوں کی دلدل میں بری طرح دھسا ہوا ہے اور سابق وزیر اعظم سعد الحریری کے مستعفی ہونے کے بعد سے ایک سیاسی بحران کا شکار بھی رہا ہے۔ مغربی دنیا اور عرب ممالک کے حمایت یافتہ سنی لیڈر سعد الحریری اکتوبر میں مستعفی ہو گئے تھے کیونکہ ملک میں مہنگائی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لبنان ایران اور سعودی عرب کے پراکسی وار کا مرکز بھی رہا ہے۔ ایران اس ملک میں حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے جبکہ سعودی عرب سعد الحریری اور دیگر سنی جماعتوں کا حامی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حسن دیاب کی نئی کابینہ لبنان کے بحران سے کیسے نپٹتی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو ادھر لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کو مظاہرین نے مسترد کر دیا ہے۔ حسن دیاب کی قیادت میں نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد بیروت میں مظاہرین ایک مرتبہ پھر سراپا احتجاج ہے۔ احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ لبنان کی باغ ڈور کسی ماہر معاشیات کو دی جائے، سیاستداں انہیں تسلیم نہیں۔ قلنا بدنا حكومة تكنوقراط، ما نجيب المستشارين ومن تحت الطاولة نجيب هيدا والمحاصصة، ما القومي مين قومي ما حزب، المرضى مين المرضى منه حزب، العوني مين عوني حزب، لأنه عم يضحكوا، يعني نسيوا كل هالعالم اللي تقوست بالمظاهرات وقوصوهم بعيونهم وهالصور اللي طلعت عيونها وجايين بدهم يعملوا حكومة، عمين عم يضحكوا، قلنا 90 يوم 95 يوم تحت الشتاء وتحت القرف وتحت النار، نحن منا مبسوطين عم نسكر. آگے بڑھیں گے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے بغداد میں واقع امریکی سفارتخانے پر راکٹ حملے کی مذمت کی ہے۔ منگل کو بغداد کے ہائی سیکیورٹی زون میں قائم امریکی سفارتخانے کے پاس 2 راکٹ گرے تھے۔ اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عراقی وزیر اعظم نے اس واقعے کو تکلیف دہ، نقصان دہ اور غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حرکت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا صواريخ كاتيوشا تطلق على السفارة الأمريكية أيضا، هذا أمر مؤذي مؤلم غير صحيح. من يخول هذه الجهات بالتعرض لممثلية في العراق؟ هذا يحط من سمعة الدولة، هذا يسيء إلى العراق، هذا غير مقبول مهما كانت النوع. امریکہ کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے قواعد کو منظوری دے دی ہے۔
अक्सरती रिपब्लिकन ऐवान ने डेमोक्रेट्स की दस्तावेजात और शवाहिद तलब करने की 4 तहरीकों को भी मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कांग्रेस के उमूर में रुकावट खड़ी करने के इल्जामात का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के तीसरे सदर हैं जिन्हें मुआखजे की कार्रवाई का सामना है। सेनेट से कबल ऐवान नुमाइंदगान ने 18 दिसंबर को सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के हक में तहरीक मंजूर की थी। सेनेट में मंगल को अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के मुआखजे की बाकायदा समाअत शुरू की तो इस मौके पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अरकान मुआखजे के तरीक़ेकार पर बहस करते रहे। डेमोक्रेट्स रहनुमा चक शुमर ने 4 मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड तलब करने की तहरीकें पेश की, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप के यूक्रेन से मामलात से मुतअल्लिक व्हाइट हाउस, महकमा खारजा, महकमा दिफा और ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट से मुतअल्लिका दस्तावेजात पेश की जाएं। मज़कूरा करारदादों पर वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन अक्सरियती ऐवान ने 47 के मुकाबले में 53 वोटों से चारों करारदादों को मुस्तरद कर दिया। सेनेट ने व्हाइट हाउस के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ को गवाही देने के लिए तलब करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान मुआखजे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकोनेल के मुजवजा कवायद पर डेमोक्रेट्स अरकान ने एतराज उठाया, जिसके बाद दोनों तरफ से शदीद जुमलों का तबादला हुआ। मैकोनेल ने तजवीज़ पेश की थी कि मजीद गवाहों या दस्तावेजात की इजाज़त देने से कबल मुआखजे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। सेनेट में सदर ट्रंप का दिफा करने वाले व्हाइट हाउस के वकील पेट कैपलॉन ने सदर ट्रंप पर आयद करदा इल्जामात की बुनियाद पर एतराज करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स ने सदर के मुआखजे के लिए अमरीकी कानून के मयार को सामने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का नतीजा ये निकलेगा कि सदर ट्रंप ने कतई तौर पर कोई गलत काम नहीं किया। सदर ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई के दौरान बहस करते हुए डेमोक्रेट के नुमाइंदा और चीफ प्रोसिक्यूटर एडम शिफ ने कहा कि सदर ने आईन की खिलाफ वर्जी की है जो इनके मुआखजे का जवाज फराहम करती है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ पहले से मौजूद शवाहिद काफी इत्मीनान बख्श हैं, ताहम मजीद गवाहों को तलब किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पता लगाया जाए कि बदउनवानी में सदर ट्रंप के साथ और मजीद कौन शामिल है। सदर ट्रंप के मुआखजे के तरीक़ेकार पर तवील बहस के बाद सेनेट ने 47 के मुकाबले में 53 वोटों से कवायद की मंजूरी दी, जिसके तहत मुआखजे की कार्रवाई में बहस पर ताखीर और मुकदमे की समाअत के वस्त तक गवाहों को बुलाया जाना भी शामिल है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप पर पहला इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2020 के सदारती इंतखाबात में अपने मुतवक्किल हरीफ जो बाइडन की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर फोन करके दबाव डाला था कि वो जो बाइडन के साहबजादे हंटर बाइडन के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात कराएं। सदर ट्रंप पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने ताउन न करने पर यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद रोकने की भी धमकी दी थी। ट्रंप पर दूसरा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने लीबिया में क़याम अमन के हवाले से किए गए वादों का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुतहर्रिब धड़ों से बर्लिन समिट के फैसलों को पूरी तरह तस्लीम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी जंग ज़दा शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में अमन बहाली के सिलसिले में आलमी रहनुमाओं के अज़्म और वादों की तारीफ की और मुतहर्रिब धड़ों से अपील की कि वो जंग बंदी मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की सरबराही में बर्लिन में बंद कमरे में हुई समिट के बाद कौंसिल ने एक बयान जारी किया है। गुतरेस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हकीकी सियासी अमल शुरू करने के लिए आगे बढ़ना निहायत ज़रूरी है। This is a major step. It was for the first time possible to sit around the table all those countries that have a direct or indirect influence in relation to the conflict and to commit them to non-interference, to commit them to support a ceasefire, to commit them to the arms embargo, to commit them to support the political process, no violations of international humanitarian law or human rights law, to commit them to support the reform of the economic and security institutions of the country is of course extremely important. But this is just the beginning. गुतरेस ने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि बर्लिन समिट में जो वादे किए गए हैं वो लीबिया में पायदार क़याम अमन के लिए राह हमवार करेंगे। ख्याल रहे कि लीबिया में सन 2014 से ही 2 मुतहर्रिब हुकूमतें कायम हैं।
बंगाजी पर कंट्रोल रखने वाले जंगी सरदार खलीफा हफ्तर ने गुज़िश्ता बरस तराबलस पर फौजी हमले शुरू कर दिए थे। गुटरेस ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की मेजबानी में बर्लिन में मुनक़िदा अमन समिट को लीबिया में क़याम अमन के हवाले से एक अहम कदम करार दिया। इस कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक 55 नुकाती एक दस्तावेज और ऑपरेशनल प्लान पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। इस दस्तावेज और ऑपरेशनल प्लान में इत्तेफाक किया गया है कि इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क के दाखिली तसादुम में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद हथियारों पर पाबंदी का एहतराम करेंगे। लीबिया 2011 में डिक्टेटर मोअम्मर क़ज़ाफ़ी के ज़वाल के बाद से दाखिली बहरान का शिकार है और इक़्तिदार की रसाकशी जारी है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में लीबियन नेशनल आर्मी के सरबराह खलीफा हफ्तर दीगर मिलिशिया ग्रुपों की मदद से तराबलस पर कब्जा के लिए निकल पड़े। वो इस मकसद में अभी तक नाकाम रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत वज़ीर आज़म फयाज़ सिराज की क़यादत में तराबलस में कायम है। बर्लिन में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म सिराज और इनके हरीफ खलीफा हफ्तर मौजूद थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात से गुरेज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशा है। इमरान खान ने दाउस में पाकिस्तान से मुतालिक एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जंगबंदी के मुस्बत इशारे भी मिले हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशां है। इन ख्यालात का इजहार इमरान खान ने स्विट्ज़रलैंड के शहर दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान से मुतालिक एक इजलास से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मंगल के रोज़ दाओस में मुलाकात के बाद एक ऐसे वक्त सामने आया जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात अहम मरहले पर पहुंच गए हैं। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग बंदी पाकिस्तान के मफाद में है। इससे पाकिस्तान के लिए वसती एशियाई रियासतों तक इक़्तिसादी राहदारी का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में 1980 की दहाई के तनाज़े और 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी वजह से पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इमरान खान के बकौल जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से इनखला हो गया तो इसके बाद पाकिस्तान को क्लाशनकोफ और मंशियात के कल्चर और फिरकावारियत का सामना करना पड़ा, जिसने पाकिस्तानी माशरे को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इमरान खान के मुताबिक 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू होने वाली जंग की वजह से भी पाकिस्तान को जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा। इनके बकौल खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार दिया जाता रहा। इस दौरान 70,000 पाकिस्तानियों की जानें गईं। इमरान खान ने कहा कि जब वो हुकूमत में आए तो फैसला किया कि आइंदा पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा बनने की बजाय सिर्फ अमन का साथ देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत ने पहली बार इरादी तौर पर अस्करी ग्रुपों को न सिर्फ गैर मुसल्लह किया बल्कि इनको मरकजी धारे में शामिल करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि इन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब ईरान कशीदगी का हवाले देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े को रोकने के लिए किरदार अदा किया है, क्योंकि इसके पाकिस्तान के लिए संगीन मुज़म्मरात हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर चीन से, जहां के शहर वुहान से फैलने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म से हलाक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। चीन में महकमे सेहत के ओहदेदार खबरदार कर चुके हैं कि यह नया वायरस म्यूटेशन या तगय्युर की सलाहियत रखता है और इंसान से इंसान में मुंतकली की वजह से इसके मजीद फैलने का खदशा मौजूद है। इसकी अलामत में बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी वगैरह शामिल हैं। चीनी शहर वुहान में इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 440 बताई जा रही है। नेशनल हेल्थ कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर लीबिन के मुताबिक तमाम हलाकतें वुहान शहर में हुई हैं। हुक्काम ने इस वायरस पर काबू पाने के सिलसिले में हंगामी इक़दामात किए हैं, जिसमें हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशन और शॉपिंग सेंटर्स पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव शामिल है। अमेरिका में भी इस पुरअसरार वायरस से मुतासिर होने वाले एक मरीज की इत्तला है।
首先，我们武汉站在东西进站口一共设立了16台红外测温仪，然后对所有进站的旅客进行那个体温的监控，并且在两边由卫健委安排了专门的医生在这边设立的那个驻站监测点。那么在每天我们都会对我们的空气设备，然后还有座椅进行全面的消毒措施。我们这边是37度3，一旦发现有发热的，我们会立刻安排到专门的那个卫健委安排的医生这边来。अमेज़न के अरबपति मालिक का मोबाइल फ़ोन 2018 में हैक कर लिया गया था। अखबार गार्जियन का दावा है कि हैक होने से पहले जेफ को जिस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ था वो सऊदी वली अहद का ज़ाती अकाउंट नंबर था। ये खास रिपोर्ट देखिए। खबर चौंकाने वाली है लेकिन सच है। कारोबारी वेबसाइट अमेज़न के अरबपति मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल हैक कर लिया गया था। वाकया 2018 का है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो मैसेज मिलने के बाद बेजोस का फोन हैक हुआ था वो किसी मामूली आदमी का नंबर नहीं था, बल्कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पर्सनल अकाउंट का था। अखबार गार्जियन को मिली जानकारी के मुताबिक माना जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान के जरिए इस्तेमाल किए गए नंबर से एनक्रिप्ट शुदा पैगाम में एक करप्ट फाइल शामिल थी। डिजिटल फॉरेंसिक तज्जिया के नतीजे में ये बात सामने आई है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स के फोन में भी घुसपैठ की गई थी। इस तज्जिया से कवी इम्कान सामने आया कि सऊदी वली अहद के अकाउंट के जरिए भेजे गए एक इन्फेक्टेड वीडियो के जरिए बेजोस के फोन में घुसपैठ की गई। नाम राज रखने की शर्त पर एक जानकार ने अखबार गार्जियन को बताया कि 2018 में 1 मई को 2 अफराद के व्हाट्सएप पर पैगाम के जरिए दोस्ताना बातचीत चल रही थी जब अनचाही फाइल भेजी गई थी। इस मामले के जानकार शख्स के मुताबिक बड़ी तादाद में डेटा बेजोस के फोन के अंदर से हटा दिया गया था। गार्जियन को इस बात की जानकारी नहीं कि फोन से क्या डेटा लिया गया था और इसका कैसे इस्तेमाल किया गया। बेजोस अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं और इसी अखबार से जमाल खाशकजी भी मुंसलिक थे, जिनके कत्ल के लिए सऊदी वली अहद को जिम्मेदार समझा जा रहा है। खाशकजी को अक्टूबर 2018 में तुर्की में सऊदी सिफारतखाने में कत्ल किया गया था। खाशकजी के कत्ल से 5 माह कबल जेफ बेजोस के फोन को हैक किया गया था। सऊदी अरब की जानिब से बेजोस के फोन हैक में मुलविस होने की तरदीद की गई। वॉशिंगटन वाक़े सऊदी सिफारतखाने ने बेजोस के फोन हैक मामले में सऊदी अरब के मुलविस होने के इल्जाम को बेतुका बताया है। खाशकजी वॉशिंगटन पोस्ट में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मज़ामीन तहरीर करते थे। पूरे मामले को एक सिलसिले के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। शहरियत तरमीमी कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को कोर्ट से राहत मिली है। शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने शहरियत कानून के खिलाफ अर्जी में मरकज को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 4 हफ्तों बाद एक दिन तय किया जाएगा कि जब मामले पर रोजाना समाअत होगी। जजों ने इशारा दिया कि मामले को आईनी बेंच के सुपुर्द किया जा सकता है। बरुआ साहब मुशावरत और कुछ और पार्टीज़ की तरफ से हम लोग अपीयर हुए और कोर्ट ने हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके। उसको कोर्ट ने एग्री कर लिया। कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और वो हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करें कि 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें। और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए। सारी एप्लीकेशंस के सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किया है। सीनियर वकील महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट में शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर हुई सुनवाई पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ खास रहा। हमारे साथ महमूद पराचा साहब हैं, सीनियर वकील हैं। पराचा साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह की सुनवाई हुई, कई तरह के फैसले शायद आपकी उम्मीदों के खिलाफ गए। नहीं, हमारी उम्मीदों के खिलाफ तो सरकार काम कर रही है। आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के खिलाफ, SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ की उम्मीदों के खिलाफ।
अभी कोर्ट के जो आज का फैसला है उस पर हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर साहब ने एक PIL लगाई है अब CAA के खिलाफ, और उसमें स्वामी अग्निवेश और वजाहत हबीबुल्ला साहब भी पिटिशनर हैं, को पिटिशनर हैं। वो अभी 1-2 दिन में सुनवाई के लिए आएगी। हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि ये मैटर जो है, पूरा देश जो है सड़कों पे है, इसको जल्दी सुनवाई करें। और इसके लिए मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब ने जो पिटीशन लगाई है उसमें ये सारी चीज़ें भी हम कहेंगे कि ये जो फैसला करना है, एक तो पूरे देश को एक साथ उसका फैसला किया जाए, नॉर्थ ईस्ट को अलग ना किया जाए, जैसा कि आज के ऑर्डर से शायद लग रहा है। तो ये क्योंकि NRC की एक्सरसाइज जो है वो पूरे देश के लिए एक साथ एनविसेज्ड है कानून में, उसी को चैलेंज किया गया है। तो देश को अलग अलग हिस्सों में डिसाइड करना ये शायद उचित नहीं होगा। ये गुहार भी हम सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, हालांकि रोक लगाने की कई तरह की बात की गई थी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है संवैधानिक बेंच को इस पूरे मामले को भेज दिया है। देखिए, ये जो है सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, एंटी नेशनल नीतियां जो हैं, देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की नीतियां जो हैं, उससे सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे CBI हो, ये NIA हो, और जितना लोकपाल हो, ये सभी इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे CAG हो, CVC हो, सब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। सरकार अपनी सारी गलतियों का जो निदान कराना चाहती है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन से कराना चाहती है। ख़ास तौर पे अपनी गलतियों का एक बहुत बड़ा पिटारा बना के सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब बात आ जाती है, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे, न्यायपालिका जैसे, उसको इतना दबाव में मत लें। जो चीज़ें उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं उसको विड्रॉ करें, ताकि न्यायपालिका के ऊपर से ये जो उनकी गलत नीतियों की वजह से दबाव बनता है वो ना बने। एक आखिरी सवाल, 4 हफ्तों का समय दिया गया, क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 4 हफ्तों का समय दिया है, वो दबाव में दिया है? हमने ये कहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब जैसे इतना गलत काम कर दिया उन्होंने, बगैर किसी स्टेट से पूछे पार्लियामेंट में लाके चुपचाप 3 लाइन व्हिप के जरिए, तो इस सब का जो रिपरकशंस आएंगे, लोग परेशान होके जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे, दूसरे कोर्टों में जाएंगे। तो इस तरीके का दबाव बना रही है सरकार, अपनी देश तोड़ने की, मनुस्मृति लागू करने की जो नीतियां लगा रही है, उसका फिर सारा जो प्रेशर है वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों पे इसलिए आता है क्योंकि सरकार जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के जो संविधान है उसके खिलाफ काम करती है। क्या धक्का है, मतलब आप लोगों के लिए क्या सेटबैक है कि आप लोग इस पर रोक नहीं लगवा सके? नहीं, तो देखिए, जनता जाग चुकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत जो है, जो सरकार को बनाती है और सरकार को हटाती है, वो जाग चुकी है। जनता की अदालत ने सरकार से और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये अधिकार छीन लिया है कि वो CAA पे वोट दें या वोट इस पे कुछ भी करें। तो ये अधिकार जनता ने वापस ले लिया है। अब ये समय की बात है कि ये सरकार कब तक सुनती है जनता की या नहीं सुनती। अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहेगी सरकार, तो जनता हमारी मजबूत है बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए, और हम संविधान बचाएंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, किसी भी हालत में बताएंगे। तो ये थे महमूद पराशा, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो काफ़ी खुश नज़र नहीं आए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। उधर शहरियत कानून और NRC के खिलाफ खवातीन का एहतजाज जारी है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में बड़ी तादाद में खवातीन धरने पर बैठी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन की रैलियां निकल रही हैं। रैलियां सर्कस पार्क पहुंच रही, जहां पर बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। और NRC के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन ने अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत में टल जाने के बाद ये धरना जो पार्क सर्कस मैदान में चल रहा है पिछले 16 दिनों से, ये धरना जारी रहेगा, ऐसा कहा गया है खवातीन की तरफ से। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर असमत जमील है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका ये धरना जारी रहेगा? हाँ, जारी तो रहेगा, क्योंकि बहुत अफसोस है, बहुत मायूस हुए हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। धरना जारी रहेगा क्योंकि अपने वतन को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम हिंदुस्तानी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जब तक अपने वतन से ये तासुब पसंदी या ये काला कानून को ख़त्म नहीं करते, हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और आज ये तो अब बेशक हमने शुरू किया था, लेकिन ये एक पूरे बंगाल की आवाज़ बन गई है। तो आज पूरे जितने यहाँ आवाम हैं सबसे बात करके और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके और आगे लेकर जाया जाता है वो करेंगे, लेकिन धरना जारी रहेगा। यहाँ बहुत सारा मेला चलता है, मेला मुनक्किद किया जाता है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी एक मेला होने वाला है,
تو اس کو لے کر کہا گیا تھا کہ آپ نے جس طرح سے ٹائم مانگا تھا، کئی ایک میلے جو ہے وہ منسوخ کیے گئے اور مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا میلہ جو ہے وہ 1 فروری سے شروع ہوگا، تو کیا لگتا ہے کہ اجازت ملے گی، کنٹینیو کر پائیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے، ہندوستان بچے گا تو میلہ لگتا رہے گا، ہندوستان بچے گا تو ہم عوام بھی رہیں گے. تو میلہ تو پھر کہیں اتنے بڑے میدان ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا کونا ہے، میلہ تو وہاں بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر یہاں سے اٹھ گئے اور ہمارا ہندوستان کا سنویدھان. آگے بڑھیں گے. پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کا راگ الاپا ہے. سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کشمیر کا مدعا پھر اٹھایا. امریکی صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر کوئی واضح جواب تو نہیں دیا، لیکن کہا کہ وہ اس تعلق سے مدد کے لیے تیار ہیں. تو چلیے، اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی. شب بخیر.